हनुमान जी के भक्त रहे हैं सचिन आप शुरू से ही। बजरंग बली से बड़ा नेता कौन? तो बजरंग बली आज मदद करेंगे कांग्रेस पार्टी की। बजरंग बली जनता की मदद करेंगे, हम सबकी मदद भी करेंगे। मैंने आपसे बहुत बजरंग नेता कौन है? बजरंग बली सबकी मदद करेंगे. That is what Sachin Pilot said. He first went to the temple and now from the temple he's left for the polling booth where he's going to cast his vote. Aman Sharma is back with us. Aman, Bajrang Bali कमलनाथ की भी मदद कर रहे थे, बजरंग बली सचिन पायलट की भी मदद कर रहे हैं. So if Hindutva was the pitch on which BJP wanted to fight this election, Congress leaders are ensuring that they are also playing on the front foot. Absolutely, Arunima. See, Rajasthan, Arunima, has never voted earlier on communal lines. Communalism, polarization has not been a feature really of a state like Rajasthan's politics. But this time, I think the game changer was the killing of Kanhaiya Lal Taylor in Udaipur. You know, that incident may have been many months ago, but I found resonance of Kanhaiya Lal's killing across the state. You know, there is this feeling that the BJP has tried to also hammer in that Mr. Gehlot's government has practiced appeasement politics, and it is, not favorable to the majority community. That is what the BJP has tried to say in this election. That is why we are seeing, I remember interviewing Mr. Ashok Gehlot when I interviewed him last month. He said, "ये Hindu card जो है, ये BJP का राजस्थान में नहीं चलेगा because Rajasthan has never voted on these lines. Rajasthan always has voted on caste lines. You know, people say that it's never a religious kind of polarizing kind of election in Rajasthan, but this time I feel that there has been this undercurrent in Rajasthan. I know when I spoke to people used to say, हमें ना मोदी का सरकार लाना है राजस्थान में. So it is like that we need a BJP government because the Gehlot government is in a way favoring the minority community. This is also very acute in a place like Jodhpur, you know, where the CM is contesting from Sardarpura, where Yogi Adityanath came to campaign and said certain things, to say that the Gehlot government is practicing Muslim appeasement. But apart from that, I think, as we saw Sachin Pilot also speaking now on this issue, I think Sachin Pilot saying that we need Bajrang Bali की blessings हमारे साथ हैं. I am not so sure if Sachin Pilot also has Mr. Ashok Gehlot's blessings in this election. We've hardly seen them together in the campaign, except a few rallies together of Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi. You know, I remember being at the manifesto release function where Ashok Gehlot and Sachin Gehlot did not even exchange any word. Ashok Gehlot went to campaign in Tonk district where Mr. Sachin Pilot was not on the stage. The other three candidates of Tonk district were there. There are 4 seats in Tonk, but Mr. Sachin Pilot was not there. So I think the conflict between Sachin Pilot and Gehlot, though there may have been a temporary truce between them, like a few months back, engineered by the Congress High Command, no love is still lost. And will this cost the Congress especially in Eastern Rajasthan, where you also travelled sometime earlier. You know, Eastern Rajasthan has 54 seats, where the BJP could win only 14 seats the last time because the dominant Gujjar community there voted thinking Mr. Sachin Pilot become the chief minister in 2018. Yes. We were the state Congress president, but that did not happen. This time the Gujjars are angry with the Congress. We have seen that on the ground. The Gujjars feel even now Sachin Pilot has not been projected as a chief ministerial face, so why vote for the Congress? Right. So if this flip happens in Eastern Rajasthan's 54 seats, which the BJP feels it will, it could be very, very bad news for the Congress because that is a region that brought the Congress to power the last time. We'll discuss that further, Aman. Do hold on because I want to bring in Arun Singh into the conversation. Arun, in fact, is in Tonk in home turf of Sachin Pilot. Arun, Sachin Pilot बजरंग बली से कह रहे हैं कि बजरंग बली से बड़ा नेता कौन है, उनकी ब्लेसिंग्स जिसके साथ है वही अल्टीमेटली उसी की नैया पार लगेगी. टोंक में क्या सेंटिमेंट है? क्योंकि जब हम लोग घूम रहे थे, ओके, आई थिंक सचिन पायलट इज स्पीकिंग वंस अगेन. लेट्स लिसन इन एंड देन आई विल और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ. विवाद बदलेगा सर इस पर 5 साल में? मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं. और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा. और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं.
भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? कल आपका एक वीडियो सीएम की ट्विटर हैंडल से साझा किया, 5 साल में पहला वीडियो, लगता है इसमें बहुत देर हो गई। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं अंडर करंट है, 156 आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पे, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है, और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा, और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती है अगर केंद्र के जो नेता हैं भाजपा के, यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं, और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है, इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद करेगी। सचिन जी, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? मंत्रियों के खिलाफ, विधायक के खिलाफ, कि अशोक गहलोत के खिलाफ? सिंह, जनता सब समझ रही है, जनता को सब कुछ समझा रहे हैं सचिन पायलट, बट गुर्जर पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न राजस्थान का, उसको क्या मैसेज दे रहे हैं सचिन पायलट? क्योंकि वो कलेक्टिव लीडरशिप की भी बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं जिता सकता। क्या उन्होंने गुर्जर वोट को कन्विंस कर लिया है कांग्रेस के साथ जाने के लिए? देखिए, उनको इसलिए भी गुर्जर वोटों को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं होंगे, जो उनके प्रभाव की सीटें हैं, अगर वो नहीं जीतते हैं, तो उनके ऊपर भी सवाल उठेगा कि आपका अपनी बिरादरी के मतदाताओं में ही महत्वपूर्ण एक तरह से पैठ नहीं है। इसलिए सचिन पायलट ये चाहते हैं कि जो गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं वहां से चुनाव जीते कांग्रेस के लोग, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि गहलोत का एक तरह से आखिरी चुनाव है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों स्थिति में अब इसके बाद सचिन पायलट को ही कांग्रेस आलाकमान ने संदेश दिया है, उनको आश्वासन दिया है कि अब प्रदेश की राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमेगी। आपने बहुत इंतजार किया, एक बार और कोशिश करिए। आपने देखा होगा कि टिकट बंटवारे से लेकर अब तक सचिन पायलट बेहद संयमित, शांत नजर आ रहे हैं। उसके पीछे यही कि वो मौका नहीं देना चाहते थे सचिन पायलट को कि वो कहें कि खेल खराब कर दिया सचिन पायलट ने। जहां तक गुर्जर मतदाताओं की बात की आपने, निश्चित रूप से जिस सीट पे मैं हूं, टोंक विधानसभा की सीट है, यहीं से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं, और ये युवा मतदान केंद्र भी बनाया गया है। तो यहां पर भी गुर्जर मतदाता 40-45 जा रहे हैं। देखिए, ये युवा मतदान केंद्र है, सेल्फी पॉइंट बनाई गई वहां पर, और ये युवा मतदान केंद्र है। युवाओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। नौजवानों की बात सचिन पायलट भी कर रहे थे। युवा मतदाताओं के लिए क्या खास आपने किया है यहाँ पर इंतजाम? सर, प्रशासन की ओर से युवा मतदाता केंद्र पे स्पेशल हमने जो साजो सामान लगाए हैं, सेल्फी पॉइंट है, रंगोली बनाई हुई है, और अभी तक जो युवा मतदाता यहाँ पर पहुंचे हैं उनका हमने माल्यार्पण करके उनका स्वागत भी किया है, ताकि उनमें जोश और की वृद्धि हो, और वो पहली बार जो वोट डाल रहे हैं वो देश के सर्वांगीण विकास में भागीदार जो बन रहे हैं। ऐसी हम उनसे अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और अपना वोट कास्ट यहाँ पर करें। देखिए, युवा मतदाताओं का माल्यार्पण किया जा रहा है, उनको